आदाब लाती हूँ शाही हरम में खुश आमदीद आइए तशरीफ लाइए रोशनाई गेट ने ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਏ Welcome to the History by Night tour on behalf of World City of Lahore Authority. ਲਓ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ इसको कहते हैं बारादरी. That is the समाधि of Maharaja Ranjit Singh. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ This is called pictured wall. ਲਓ ਜੀ ਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ BAS. अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ट्रैवल विद विकास हैदर ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਲੌਗ ਹੈ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਂਝ ਦਾ এনवायरमेंट ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਕਸੋ ਸਰੂਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੇ ਸੀ ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 101 ਸਾਧਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਆਓ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 뮤직 ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੋਰੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਉਂਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਆ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਵਧ ਰਹੇ ਗਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲੱਗਾ ਬੋਰਡ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਲਾਂਗੇ ਉਹ 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਸ਼ ਇੱਧਰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਕੇ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ
ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਏ, ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੱਚ ਬਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 13 ਜਨਵਰੀ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਜੇ? ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਕੋ ਇਹਨੂੰ। सभी मेहमान, जिन मेहमानों के पास कार्ड्स हैं, आर यू रेडी फॉर द टूर? जो मेहमान रेडी हैं वो आ जाएं ताकि हम अपने टूर का आगाज करें। माय नेम इज अब्दुल्ला, मैं आपका टूर गाइड हूं आज का। होपफुली यू आर ऑल वेल। आर यू? जी जी बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं तो टूर के लिए आए हैं ना? हाँ। तो वेलकम टू द हिस्ट्री बाय नाइट टूर ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। आजो जी टोना साहब, आपने मेरे साथ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। नहीं, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? आ जाए सभी मेहमान, आ जाए जी अंदर। ਲਓ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਆ। हर एक को अदब का लिहाज और हया, न किसी को सर के उठाने का हक है, ना मजाल। नजर झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए खड़े रहो। आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शहंशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ, ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਰਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ। अच्छा जी, तो सभी मेहमान हमारे इस वक्त इलामा इकबाल साहब के मज़ार के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। इलामा इकबाल साहब को आप सभी जानते हैं, हमारे कौमी शायर भी थे। ही वॉज अ रिनाउंड फ़िलोसोफर, एक सूफ़ी सेंट पर्सन भी थे। तो इलामा इकबाल वैसे तो सियालकोट में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा लाहौर शहर में भी गुजारा। अंदरून लाहौर जो है उससे कौन वाकिफ़ है बेहतर तरीके से? आप में से किसी को अंदरून शहर लाहौर के बारे में ज़्यादा पता है? कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछने लगा। जो आप अंदरून शहर के अलावा भी जो लाहौर शहर में रहते हैं, आप सभी ने दाता दरबार तो देखा होगा। दाता दरबार के बिल्कुल सामने सर, तो आपने भाटी दरवाजे का नाम सुना होगा। भाटी दरवाजे के अंदर देयर इज अ म्यूजियम दैट इज कॉल्ड फकीर खाना म्यूजियम। फकीर खाना म्यूजियम के बिल्कुल ऑपोजिट देयर यूज्ड टू बी अ कैफेटेरिया। अभी तो एक घर बना हुआ है, लेकिन वहां पर अगर आप जाएं तो वहां पर हिस्ट्री फ्लैग अभी भी लगा हुआ है कि इलामा इकबाल साहब ने अपनी शायरी का आगाज वहां से किया था। जो हमारा भाटी दरवाज़ा है लाहौर शहर का, उसको चैलेसी ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। उसी भाटी दरवाजे के अंदर बहुत ही अहम शख्सियात जो हैं रह चुकी हुई हैं। इलामा इकबाल साहब वहाँ पे रह चुके हुए हैं। जो बाबर अली हैं, पैकेजेस मॉल के जो ओनर हैं, उनकी भी हवेली वहीं पर है। मोहम्मद रफ़ी जो फेमस सिंगर है सब कॉन्टिनेंट के, ही आल्सो लिव्ड ओवर देयर। मैडम नूर जहाँ भी वहाँ पर रहा करती थी। बाबा बुल्ले शाह सरकार जो हैं, एक सूफी सेंट पर्सन है, बुजुर्ग हैं, उनके जो पीरो मुर्शद थे वो भी भाटी दरवाजे के अंदर ही रहा करते थे। इलामा इकबाल साहब की डेथ 1938 में होती है। इन 1951 इट वाज कंप्लीटेड। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल आप देख रहे हैं, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ अफगान एंड मोरिश आर्किटेक्चर। जो आउटर स्ट्रक्चर है सारा, ये सारा संगे सुर्ख से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से। और रेड सैंडस्टोन ऐसा पत्थर है जो मुगलों की ज्यादातर इमारतों में इस्तेमाल हुआ है। 400 साल पहले ये इंडिया के शहर जयपुर से लाया जाता था, जो कि लाहौर शहर से 500 से 600 किलोमीटर दूर है। ये जो मस्जिद आप अपने बिल्कुल सामने देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद भी इसको कहा जाता है। इसी मस्जिद को आलमगीरी मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाई थी। तो जैसा कि मैंने आपसे वहाँ पे पूछा था कि जी ये मज़ार कितने साल में मुकम्मल हुआ होगा, आप में से किस किस ने ये मस्जिद अंदर से विजिट की हुई है? तो जिन्होंने मस्जिद अंदर से विजिट की हुई है, आप बाकी मेहमानों को बताएं कि मस्जिद कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी मस्जिद है साइज में। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि पाकिस्तान की
सबसे बड़ी जो तारीखी मस्जिद है, दैट इज बादशाही मॉस्क। और इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हेयर इज अगेन अ क्वेश्चन कि ये बादशाही मस्जिद कितने साल में मुकम्मल हुई होगी। सामने आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं 12 दरी। इसको 12 दरी कहा जाता है। और ये जो बाग आप देख रहे हैं जो मोनूमेंट के सराउंडिंग में है, इट इज कॉल्ड हजूरी बाग। जो 12 दरी है, इट वाज बिल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1818। आप सभी मेहमानों ने कोहिनूर हीरे का नाम सुना होगा। जो कोहिनूर हीरा जो है, नाउ इट इज़ इन इंग्लैंड। 1849 में अंग्रेज़ अपने साथ ले गए थे कोहिनूर हीरे को। तो जब महाराजा रंजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आया तो महाराजा रंजीत सिंह ने सबसे पहले तो यहाँ पर जश्न मनाया इस बाग के अंदर, सेलिब्रेशन की। और कुछ सालों बाद उस सेलिब्रेशन की यादगार के तौर पे इस मोनूमेंट को यहाँ पे तामीर करवाया। अगर आप देखें, राइट नाउ इट इज़ अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। लेकिन जब ये तामीर की गई थी इमारत, इसके ऊपर भी एक कमरा होता था जो कि 1960 में 1960 में आसमानी बिजली गिरने की वजह से कमरे के अंदर क्रैक्स आ गए थे। तो वो सारा मार्बल जो है ना, वो कमरा खुद ही ख़त्म करके नीचे रखना पड़ा मार्बल। एंड डाउन देयर आर 2 बेसमेंट्स। तो 12 दरी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 12 दरवाजे बने हुए हैं, 12 आर्चेस बनी हुई हैं। 3 आर्चेस हमारे सामने हैं, 3 ऑन द राइट साइड, 3 ऑन द लेफ्ट साइड, और 3 जो है वो दूसरी तरफ बनाई गई हैं। और ये बाग जो है सारा हजूरी बाग कहलाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप सभी मेहमान अपने लेफ्ट साइड पे देखें, वो जो वाइट कलर की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, जो एक गुंबद बना हुआ है, दैट इज द समाधि ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो था, ही वाज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर। 1799 में ही बिकेम द किंग and he ruled about for 40 years. So when Maharaja Ranjit Singh died inside Sheesh Mahal Lahore Fort, Maharaja Ranjit Singh was cremated over there. और बिल्कुल महाराजा रंजीत सिंह की समाध के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, आपको एक और गुंबद नजर आएगा, डेट इज द समाध ऑफ खड़क सिंह, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का ही बेटा था। आगे खड़क सिंह का जो बेटा था नौनिहाल सिंह, उनकी भी समाधि यहीं पर मौजूद है। आए जी सभी मेहमान इस तरफ वॉक करेंगे अपने लेफ्ट साइड पे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अपने बिल्कुल सामने जो आप दीवार आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पिक्चर्ड वॉल। शाही किले की मुसव्वर दीवार इसको कहा जाता है, दीवार मुसव्वरी भी कहते हैं। ये शाही किले की हिफाजती दीवार हुआ करती थी जो कि मुगल बादशाहों ने तामीर करवाई थी। आप अपने राइट कॉर्नर से लेके लेफ्ट कॉर्नर तक जो दीवार का देख रहे हैं हिस्सा, दिस इज 1/5 पार्ट ऑफ द पिक्चर वॉल। इस तरह के 4-5 हिस्से जो हैं वो आगे भी बने हुए हैं। ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर वाइड है, 460 मीटर्स यहाँ से स्टार्ट होती है, आगे तक चलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो सीन आपको नजर आ रहा है, हाथी 2 आपस में लड़ रहे हैं। कैन यू सी इट? बिल्कुल राइट कॉर्नर पे दीवार के। उसके बाद एक आदमी ऊंट को लेके जा रहा है, फिर घोड़े हैं, कुछ आदमी हैं, फिर ऊंट है, हाथी है। तो इस तरह करते करते अप टू 300 लाइव सीन्स बने हुए हैं इसके ऊपर। और ये जितना भी काम हुआ है ये सारा टाइल का काम हुआ है, टाइल मोज़ेक वर्क है। कलरफुल टाइल्स को डिफरेंट शेप्स में काट के दीवारों के अंदर फिक्स किया हुआ है। और चूंकि दुनिया में इससे बड़ी दीवार और कहीं नहीं है जिसके ऊपर ये टाइल का काम हुआ वो, इसी वजह से शाही किले को जो है यूनेस्को साइट भी डिक्लेयर किया गया है। जो पूरी दुनिया के अंदर 1200 से ज्यादा यूनेस्को साइट्स हैं। इन पाकिस्तान वी हैव 6 यूनेस्को साइट्स, उनमें से एक जो है वो शाही किला भी है। 1981 में इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया था। अगर आप नीचे देखें तो नीचे मजीद खुदाई की गई है। जो शहर लाहौर का जो शाही किले की जो ग्राउंड लेवल होता था, डेट वाज डाउन देयर। ना जी आ रिक्शा आ गया जेड़ा सानू लेके जाऊगा। BASTION इस तरह करके कुछ स्पेलिंग बनते हैं। लैंडिंग हो, सेफ लैंडिंग। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लो जी पीक ते आ गए, हुण टॉप ते आ गए हैं। इस तो बाद मैनूं लगदा असीं जावांगे शीश महल दे अंदर। आई एम डूइंग द सेम। मैं भी आपको याद कर रहा हूँ कि आप रिक्शे गाड़ियों से उतरें और हम अंदर चलें। आए जी प्लीज, अब हम अंदर चलते हैं। हम जा रहे हैं बारूद खाना की इमारत देखने के लिए। तो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बारूद खाना।
बारूद खाना की जो बिल्डिंग है 1857 में वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज दौर में बारूद खाना की इमारत बनाई गई थी ताकि उसके अंदर जो है गन पाउडर स्टोर किया जा सके। बिफोर रेस्टोरेशन, अभी रिसेंटली इसको वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने रिस्टोर किया है 2018 एंड 2019 में, 1.5-2 साल के अरसा में इसको रिस्टोर किया। बिफोर रेस्टोरेशन आप देखें कि जो घास है, जो ग्राउंड लेवल है, उससे जो बिल्डिंग है वो काफ़ी हाइट पे है। तो जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है इतनी बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी यहाँ पर। ये फ्लूट परफॉर्मेंस का अरेंजमेंट है। बिलाल साहब, अ वेरी रिनाउंड फ्लूट परफॉर्मर इज़ हेयर। तो आप सभी मेहमानों से मैं पूछूंगा कि आप सब मेहमान हिस्ट्री बाय नाइट टूर को एंजॉय कर रहे हैं? जी। ये तो अभी पता मैं लगवा लूँगा, यहाँ पर आपका टेस्ट होने लगा अभी एक। अच्छा जी। हाँ जी। तो बिलाल साहब हमारे फ्लूट परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म कर चुके हैं। टुडे इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री बाय नाइट टूर। तो बिलाल साहब मेहमानों को कुछ सुनाई जी। मैं आपको सबसे पहले एक राग सुनाऊंगा। मौलिया दौर का एक राग है। राग का नाम है ईमन कल्याण और ये शाम का राग है। उस राग के बाद एक परफॉर्मेंस होगी जिसमें आप सब गाएंगे और गाएंगे। थोड़ा फ्लो ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ सर मेहमान ज़रा शॉपिंग कर लें, वो फ्री होते हैं फिर चलते हैं। हाँ, नहीं फोटो शूट हो गया। नहीं हमारा नहीं है वो, जो जा रहा है उसको जाने दें। ये बादशाह के हरम है, क्योंकि इस वक्त आप दाखिल होने लगे हैं बादशाह और मलका जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर, तो वहाँ पर ये आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आदाब बजा लाती हूँ, शाही हरम में खुश आमदीद, आइए तशरीफ लाइए। आओ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜਾਓ। आ गए जी। ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। आदाब बजा लाती हूँ, शाही हरम में खुश आमदीद। शुक्रिया जी, शुक्रिया, मेहरबानी। बाकी आगे आपने खुद ही जाना है, ये चेयर्स तक नहीं। जहाँ शीश पर महल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ जनाब आपको ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ सीट्स ओपन मिलती है एयर सी वहाँ पर बैठ बैठ जाएं, चेयर्स में भी बैठ सकते हैं, आगे कालीन भी है आप ही के लिए। विद इन फ्यू मिनट्स परफॉर्मेंस विल स्टार्ट हियर। यहीं पर Babulaiza, Ocean. Babulaiza, Ocean. शहंशाह शाह इस रवे दौरा आली वक्त तारी जहां मरकज़े इनायत खुदाबंदी नज़्र रूबरू बादब खड़े रहें फख्र ताजदार वक्त सुल्तान इब्न सुल्तान
बादशाह शान फरमारवा बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। कॉपीराइट वाला ना यूज होया ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 5-5 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਰੇਡ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮੁ ਸ਼ਾਨ ਅਜ਼ੀਮੁ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो आदाब बजा लाता हूँ। बादशाह सलामत और मलका आलिया को खुशामदीद कहते हैं। आज अब अपनी रियाया को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश हुए हैं। अब अपनी रियाया को खुशामदीद कहते हैं। कैसे आना हुआ वजीर खास? जहां बना चित्तौड़गढ़ की फतह की खुशी में जश्न नौरोज की शाम को हसीन और दिलफरेब बनाने के लिए रक्स व सुरूद का एहतमाम किया गया है। बहुत खूब। हुजूर ताइफा को खास तौर पर लखनऊ से मदऊ किया गया है। बहुत खूब। आपकी इजाजत मतलूब है अलीजा? जी वजीर खास, इजाजत है। आज की शाम के लिए जकरिया इकबाल और जैसिका रक्स पेश करते हैं। शीश महल के अंदर आ गए हैं जी। हुन सानू ये भाई करतब अच्छा करके जी, मारेगा। हमारे जितने भी मेहमान हैं, मैं लाइट ऑफ करने लगा हूँ। सभी मेहमान अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑफ ही रखें। तो शीश महल जो है ये शाहजहां बादशाह ने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए बनवाया था। उसकी बीवी ने, इसके बारे में दो कहानियां बताई जाती हैं। कुछ तारीखदान ये कहते हैं कि मलका ने एक रात ख्वाब देखा कि वो बादलों के ऊपर चल रही है, चांद सितारे उसके गिर्द हैं। उसके ख्वाब को सच करने के लिए शीश महल बनवाया गया। लेकिन सेकंड स्टोरी इज डैट कि मलका जो है वो बहुत डिमांडिंग थी, क्योंकि एक बीवी डिमांडिंग ही होती है। तो डिमांडिंग वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि कोई भी हस्बैंड ये अपनी बीवी के लिए कर सकता है, ये कुछ अलग नहीं किया आपने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए कुछ अलग करें, आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाएं। फिर शाहजहां बादशाह ने ये सारे शीशे लगवाए थे और इन शीशों के नीचे सोने के पानी की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि मलका को पसंद नहीं आई थी। उसने कहा कि मेरे लिए, मैं चाहती हूँ मेरे लिए चांद तारे ज़मीन पर आएँ। तो फिर शाहजहां बादशाह ने शीशे लगवाए थे। तो आप सभी मेहमान जो है ना सीलिंग के ऊपर देखेंगे, आप सभी मेहमानों को स्टार्स नजर आ रहे होंगे। स्टार नीले कैसे हो गए? तो इवन वी आर 400 ईयर्स लेट, 400 साल पहले भी रात के वक्त जब यहाँ पर एक ही चिराग रोशन किया जाता था, उसका शोला जो है इन हजारों मिरर्स में से रिफ्लेक्ट करता था और ऐसे लगता था आसमान के जो सितारे हैं वो मलका के करीब आ चुके हुए हैं। आए जी सभी मेहमान, एक मिनट मुझे थोड़ा रास्ता दे दें प्लीज। हम इसी रास्ते से बाहर आएंगे जी। ये यहाँ पर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आधी दर्जन कहानियां सुना दूं आपको आज की तारीख में। आए जी सभी मेहमान आ जाएं। बेगमात अपने फिलहाल अपने बंदों को छोड़ दें, घर जाके पकड़ लेना।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਮੁਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਰਿयलिटी। ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, तो एज यू पीपल हैव सीन द स्टार इनसाइड, सितारे आपने देख ली हैं। तो ये जो पूरा तालाब पानी से भरा हुआ होता था, रात के वक्त ठहरे हुए पानी के अंदर चांद का पूरा अक्स पानी में नजर आता था। तो ये थी जी इस एरिया की जो एक हैप्पी स्टोरी है कि बादशाह ने अपनी बीवी के लिए क्या किया। ये तो आपने चांद सितारे देख लिए, उसके अलावा यहाँ पर मलका का ब्यूटी पार्लर भी होता था जो कि उस बिल्डिंग के अंदर था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसकी सीलिंग थोड़ी सी कर्व हुई हुई है, डेट इज कॉल्ड 9 लखा बंगला। 9 लाख रुपए उस वक्त में खर्च हुए, शाहजहां बादशाह ने खर्च करके अपनी बीवी का ताज बनवाया, और दुनिया का सबसे बड़ा ताज भी इसे कहा जाता है क्योंकि द बिल्डिंग इज इटसेल्फ अ क्राउन, और ये शाही किले की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। उसके अलावा यहाँ पर मलका के लिए एक प्राइवेट हमाम बनवाया गया था, जहाँ पर कहते हैं कि वो दूध के साथ, खुशबू वाले दूध के साथ नहाया करती थी। तो यहाँ पर हैप्पी स्टोरी के साथ सैड स्टोरी ये है कि जिस मलका के लिए ये सारा कुछ बनवाया गया था, शी नेवर सीन द शीश महल, वो कभी यहाँ पर आई नहीं, वो मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी पहले। उन्हें मारी जाना। और यहाँ पर अगर आप सभी मेहमान अंदर आए ना प्लीज, थोड़ा सा अंदर आए, तो अंदर आते ही पानी आ जाएगा। फिर आपको चांद नजर आएगा। अच्छा जी, ये ऐसे बंदे दी अपनी करामात ही कहने के अंदर आते ही पानी आई। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें ना नीचे, तो यू कैन सी द हार्ट शेप स्टोन्स, दिल की तरह के पत्थर लगे हुए हैं। तो कुछ लोग, हाँ जी, बादशाह का दिल भी तो टूट गया ना, लेकिन वो अलग बात है, उसने दोबारा जोड़ लिया था दूसरी करवा के। तो ये जो पत्थर है, कहा जाता है इसके बारे में कि यहाँ पर लाल रंग के पत्थर होते थे क्योंकि जो लाल रंग है रिप्रेजेंट्स लव, प्यार को जाहिर करता है। लेकिन जब मलका की डेथ होगी, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकी, तो शाहजहां बादशाह ने ये पत्थर निकलवा के इनकी जगह काले पत्थर शिफ्ट करवा दिए। तो ये स्टोरी मैंने इसीलिए बताई थी कि मेरे एक टूरिस्ट जो है आपस में बात कर रहे थे, मैंने कहा ये भी सुना दूं आपको। आए जी, अब हम चलते हैं रॉयल किचन की तरफ। खान पीन का इंतजाम है? नहीं सर, रॉयल किचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, पे ये पीछे एक मोनूमेंट देख रहे हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके 8 रास्ते बने हुए हैं, 8 आर्चेस बनी हुई हैं। दिस इज कॉल्ड 8 दरा। पंजाबी में इसका नाम इसीलिए प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि दिस वाज द कोर्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, जिसकी समाधि भी हमने बाहर देखी थी, वो जो व्हाइट कलर का एक डोम बना हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह यूज्ड टू हेल्ड हिज कोर्ट ओवर देयर। और ये 1820 में इमारत यहाँ पर बनाई गई थी। और इसी के साथ हमारे मेहमान भी ऑलमोस्ट आ चुके हुए हैं। आए हम आगे की तरफ चलते हैं। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ आमतौर पर शादी ब्याह की तकरीबात और मेलों गोलों में बजाया जाता है। ਹਲਾ पाकिस्तान में मज़ार ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। खुसूसन मलंगों और फकीरों को ढोल की ਹਾਂ,
ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੂਫੀ ਧਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜੀ ਮੁੰਡਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੂਫੀਆਨਾ ਧਮਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਐਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਨਾਈਟ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਚੀ ਗੇਮ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੋ ਲੈਣੇ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੂਡ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? अस्सलाम वालेकुम सर, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ, ਵਾਹ। हाँ जी, ये लिफ्ट वाला सिस्टम है जी इतने भी। सबसे पहले यहाँ से व्यू आपको मिलेगा कि ये शाही किले का, हाँ जी, ये बारादरी, ये तो सारा गुरुद्वारा, मीनार पाकिस्तान, साथ में ही आपको बादशाही मॉस्क। लेकिन अभी इधर से नहीं, अभी हम जाएंगे ऊपर। अच्छा, इस एक स्टेप अप हो जी, चलो जी, आ जाओ जी, एक स्टेप अप करिए और कहते ऊपरों जाके और माहौल शानदार हो जाना। हाँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा जी, कि हमारा चल रहा है ये लाइव किचन। अच्छा, किचन भी लाइव है, लाइव चल रहा है और कस्टमर को ये चीज आज आज कुछ है साढ़े जैसे ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਪਕਾਓ ਹੈ सर ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ आप भी खाओ ਅੱਛਾ और खुद देखे कि हमारे लिए बन क्या रहा है। हर एक चीज हमारी फ्रेश तैयार होती है। क्या बात है। ये हमारा जो हमारा बारबेक्यू है वो तंदूर है, और जो हमारा तवा फूड है। ठीक हो गया। ये सारा थोड़ा लाइव किचन बाहर ही ओपन नहीं है। किचन हर एक कस्टमर आके ਵਧੀਆ खड़े ਕੀਤਾ, होकर ਸਾਹਮਣੇ बनाना ਰੱਖਿਆ। भी हाँ, ਬੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ और ਰੱਖੋਗੇ। आप टेबल पे बैठे हुए हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं है। चलो, ये बहुत बड़ा बढ़िया ऊपर चलते हैं। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੇਟਰ। ਇੱਧਰ ਵੈਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਮ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਲੇਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਬਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ, এনवायरमेंट ਵੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਤੁਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਫੋਰਟ ਵਿਸਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਡਿਨਰ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ
ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਚੱਲੀਏ ਟੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਤ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਮਾਪਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਇੰਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਟੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।